Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss letter writing pattern and rules for writing formal letters in English. Keep in mind that in English there are number of conventions that could be used when writing formal or business letters, but keep in mind you will have to write as simply, as clearly as possible, and not to make the letter longer than necessary. Remember not to use informal language such as contractions in your letter or any type of slang language. Okay, now we will discuss the pattern of formal letter, which is as follows. Obviously you will start writing a formal letter with your address, then there will be the date, afterwards there will be the name of the addressee's name, salutation, subject, introduction, body, conclusion, closing, and name of the sender. Dear students, here is an example letter that has been shared by me for you people to understand the letter pattern effectively. Here you can see that I have write down the sender's address at the top right corner of the page, and keep in mind you won't put any signs of commas or anything else in your address. Then afterwards, without skipping any line, there will be the receiver's address. Receiver address, you can see there is no comma, nothing, anything like that. So afterwards, without skipping any line, there will be the date. So keep in mind there are certain patterns of writing at that date, but you will only follow this pattern. As you can see, different people put the date on different sides of the page, but you will write this on the right or the left on the line after the address you are writing to. तो जिस एड्रेस को आप लेटर जो है वो सेंड कर रहे हैं, जो रिसीवर का जो एड्रेस है, उसके बाद जो है वो आप डेट जो है उसको मेंशन करेंगे, बट विदाउट स्किपिंग एनी लाइन. ओके, सो कीप वन थिंग इन माइंड आल्सो कि जो डेट लिखने का जो पैटर्न है दैट शुड बी एज आई हैव रिटन इन माय एग्जांपल लेटर, कि आप स्टार्ट करोगे डेट से, देन आफ्टरवर्ड्स मंथ, देन आफ्टरवर्ड्स ईयर. सो कीप इन माइंड डेट के अंदर जो है यू विल नॉट पुट एनी सॉर्ट ऑफ कॉमा या एनीथिंग लाइक दैट, और जस्ट ईयर के बाद आप फुल स्टॉप लगा के डेट को कंक्लूड करेंगे. ओके, नेक्स्ट सैल्यूटेशन है. Salutation, as you can see, I have written as dear sir. So keep two things in mind. First one is, if you do not know the name of the person you are writing to, it is always advisable to try to find a name, but if you do not know the name whom you are writing to, so you will call him या her as sir या madam. तो आप उसको जो कॉल करेंगे, जो एट्रीब्यूट करेंगे, वो डियर सर या मैडम के साथ जो है वो आप करेंगे. ओके, नेक्स्ट आपका जो सेकंड थिंग है दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, इफ यू नो द नेम, यूज द टाइटल मिस्टर, मिसेस या मिस या डॉक्टर एटसेट्रा एंड द सर नेम ओनली. तो आप इस तरह की जो टाइटल्स है, मिस्टर, मिस, मिसेस, डॉक्टर, इस तरह के टाइटल्स you will be using. And if you are writing to a woman and do not know if she uses Mrs. or Miss, और अगर आप किसी फीमेल, किसी women को एट्रीब्यूट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, लिख रहे हो, और आपको ये नहीं पता, if you do not know कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो आप जनरली उसके लिए जो यूज करोगे दैट इज MS full stop, Mrs. आप यूज करोगे, which is obviously used for both married and single women. And do not use a full stop after titles such as Mr, Doctor, Mrs, etc. in salutation. Salutation के अंदर आप जो भी abbreviations, जो भी short forms आप use कर रहे हैं, जैसे Mr है, Mrs है, उसके बाद आप full stop जो है वो नहीं लगाएंगे. ओके, देन ऑब्वियसली कम्स योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आपने प्रिसाइज वन लाइन का, फ्यू वर्ड्स का आपने सब्जेक्ट जो है वो उसको हेडिंग बना के उसको प्रॉपर अंडरलाइन करके जो है, जैसे एज यू कैन सी जो मैंने जो वे अडॉप्ट किया है, जिस तरीके से मैंने लेटर को सब्जेक्ट को जो है वो अंडरलाइन किया, आप भी इसी तरह से उसको अंडरलाइन करेंगे. ओके, नेक्स्ट आपके पैराग्राफ राइटिंग आता है. सो फर्स्ट पैराग्राफ, एज यू कैन सी इन माइन एग्जाम्पल लेटर, द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट एंड शुड स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर.
to make an inquiry, complain, request something etc. So फर्स्ट पैराग्राफ आपका बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और ओनली जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में आपने उस पैराग्राफ के अंदर जो है वो मेंशन करना है, प्रॉब्लम के बारे में बताना है, प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिफाइन करना है. ओके, देन कम्स योर मिडिल पैराग्राफ्स. मिडिल में आप लोगों के पास ऑप्शन है, यू कैन ऐड 2 or 3 पैराग्राफ्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर प्रॉब्लम या डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर इशू या इश्यूज जो है उसमें आप उसको सेकंड मिडिल पैराग्राफ को आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो 2 से 3 पैराग्राफ्स के अंदर, बट ट्राई टू कीप इट शॉर्ट. आप कोशिश करें कि उसको आपने शॉर्ट पॉसिबल वे में जितना आप रख सकते हैं उसको रखना है. The paragraph or paragraphs in the middle of the letter should contain the relevant information behind the writing of the letter. जो भी आपका purpose of the writing है, आप उस purpose को accordingly आपने अपने middle के जो 2 से 3 paragraphs या एक paragraph जो भी लिखना है उसको आप वहीं तक उसको limited रखेंगे. Although the most letters in English are not very long, so keep the information to the essentials and concentrate on organizing it in a clear and logical manner rather than expanding too much. तो बजाय इसके कि इसको बहुत ज़्यादा expand करने के या बहुत ज़्यादा इसको prolong करने के लिए keep it short, keep it simple and keep it in a organized way. Okay, next comes the last paragraph. The last paragraph of the formal letter should state what action you expect the recipient to take. आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी उससे एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं कि ये रेसिपिएंट जो है वो उसको क्या एक्शन लेना चाहिए या वो क्या एक्शन लेगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो वही एक्सपेक्टेशंस के बारे में आप बात करोगे इन योर लास्ट पैराग्राफ. देन आफ्टरवर्ड्स आपके जो कंक्लूडिंग जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कंक्लूडिंग जो आपने जो बात करनी है उसमें आपका एज यू कैन सी आई हैव रिटन योर्स फेथफुली. सो कीप 2 थिंग्स इन माइंड अगेन हेयर एज के अगर इफ यू आर राइटिंग योर्स फेथफुली सो मेक श्योर कर देना है कि आपके पास सैल्यूटेशन में डियर सर या मैडम ही लिखा होना चाहिए. सो इफ यू बिगिन योर लेटर विद डियर सर मैडम सो यू विल यूज योर्स फेथफुली. तो आपका अगर लेटर स्टार्ट हो रहा है डियर सर या मैडम से, आपने यहाँ पे सैल्यूटेशन में डियर सर या मैडम लिखा है, तो यू विल यूज योर्स फेथफुली. योर्स फेथफुली के बाद कहा बट if you are not using if you are not starting if you are not beginning your letter with dear sir ya madam and if you are using names of the recipients like Mr. XYZ जो भी आपने लिखा है, so you will end your letter with yours sincerely. तो आप जो लेटर जो एक्सताम करोगे, आप जो उसको वाइंड अप करोगे वो योर्स सिंसियरली और योर्स सिंसियरली और फेथफुली के बाद ऑब्वियसली आपने कामा लगाना है. ओके, देन कम्स योर सिग्नेचर. आप सिग्नेचर करोगे, साइन योर नेम एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप अपना नाम लिखोगे. So that concludes the presentation. Hope you have enjoyed it. Thank you very much and have a nice day.